Yes, good morning, everyone. So, Good morning. yes, Good yes, so morning. everyone is requested to keep their camera working. Yes. So, welcome back to the another session of the IP class. So today we will focus on the topic that last we have worked on looping. So today we'll focus on the list. Clear. So just couple of topics are left before we switch over to the uh, fresh topics of the grade 12. So within next couple of days, we will finish the topics which were the part of +1. Clear. So today we are going to focus on list. So who will give me the brief introduction about this? Who will take the lead in discussing about the list? So we'll start with Jasleen. So for your help, I am sharing this slide. So based on this slide, you can start about the list. So lists are always in square brackets, Yes. and these are feeling good, and these are mutable in nature. So we are Yes, yes. Wait. यार किसकी आवाज आ रही है साथ साथ? चलो कोई बात नहीं. Clear. So basically now list के लिए जो notation है that is you have well described, that is the square brackets are used. Clear. Or basically lists are ordered with the index value. These are the in the bottom side. The values starting from 0 to 4. These are the index value. So that's why from the index value they are called the ordered. Clear. Because from the index value we can access any of the element of the list. So that's why they are called ordered, because all the elements in the list they follow a particular order. And the important thing about the index is that if we are using the negative indexing, so we can access the element from the rightmost side. -1 represents the element that is present at the rightmost side. Clear. So this is everything about this we have done. So this is how the list is created with the square bracket, and 3 examples are given. So I will just, yes, Manat Sharma. मनद ये जो स्लाइड्स आपके सामने शो हो रही है, क्लियर, इसमें एग्जांपल्स दी हुई है लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3. क्लियर. तो से समथिंग अबाउट दीज जो भी एग्जांपल दी हुई है, एक्सप्लेन दीज एग्जांपल बेस्ड ऑन द लिस्ट. सर पहले वाली लिस्ट में अलग डाटा टाइप है, एक स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग वाले और 2 इंटीजर वाले हैं. दूसरी वाली लिस्ट में सारे इंटीजर वाली वैल्यूज हैं और थर्ड लिस्ट में भी कैरेक्टर्स हैं. तो something significant you found in these examples about the list? That is basically the list can contain the heterogeneous data elements. Clear. Like in the first list we have string elements as well as the integer elements. Clear. So that is means the list can have the different types of elements, heterogeneous elements. And at the bottom side we have an example of the blank list, how to create a blank list. ठीक है. ये blank list का यूज हम कहाँ पे करते हैं? We will tell. So यस, नवदीप से पूछते हैं. नवदीप ये बताओ, ये ब्लैंक लिस्ट का यूज कहाँ पे करते हैं? वेयर वी यूज द ब्लैंक लिस्ट? सर फॉर इनपुटिंग. जब हमारे पास बेसिकली वी वांट टू पुट एलिमेंट्स इनटू द लिस्ट, सो वी स्टार्ट विद a blank list and then we with the help of a list with the help of a loop we start putting into the elements into the list using the append function. That's we do mostly. Now the next thing is access items from a list.
So this is how we are going to access the elements in a list that is based on their index value. Clear? And the index value starts from the 0 value and it keeps on going up to n-1 because we are starting from the 0th element. And the negative indexing is, that is if we want to access the elements from the right hand side. So for that we use the indexing from -1 for the rightmost element, -2 for next element, -3 for the next element. So this is how we can use the how to access the elements of a list using the indexing. Now the next is iterating or traversing through the list. So you might have find the questions based on this in the exams also. So who will explain this one? So yes, starting with Bhavya. Bhavya, ye is code ko karo. Then we will ask next question to Shriya. Here we have been given the list containing the elements 3, 5 and 9. उससे आगे हमने for loop का use किया है. For I in range 0 से लेके length list 1. List 1 की length है 3 because there are 3 elements. So ये 0, 1, 2 तक ये run करेगी, 3 include नहीं होगा. और उसके बाद हमने लिखा है print list bracket में I. This is used to refer to the index value. So 0 फर्स्ट हमारा 0 है तो 0 इंडेक्स में 3 है तो 3 प्रिंट होगा. फिर आगे आया 1 इंडेक्स पे 5 है तो 5 प्रिंट होगा. फिर उससे आगे 2 पे 9 है तो 9 प्रिंट हो गया. गुड वन. एक इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करते हैं एंड वी आस्क द क्वेश्चन टू नाउ. ठीक है. As the question is to yes मनत शर्मा. yes मेरे को ये आउटपुट जो है I want this vertical आउटपुट आ रही है मेरे पास 3, 5, 9. I want this output to be horizontal में आए. So what changes I need to do in this code? क्वेश्चन क्लियर है? जैसे ये आउटपुट आ रही है 3 फिर उसके बाद 5, 9 आउटपुट ऐसे ही आएगी बट अब लाइन में आएगी 3 उसके बाद 5 उसके बाद 9 ऐसे आनी चाहिए. तो जो शायद हम जो लिस्ट के अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है उसको हटा के. नहीं बेटा, लिस्ट के अंदर अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट ही हटा दी तो लिस्ट ही खत्म हो जाएगी फिर तो. So yes, Shriya will tell this. So we will use end is equal to quotes in after you writing list I. Double quotes. ठीक है. So जितनी हम यहाँ पे स्पेसेस मेंशन कर देंगे those many spaces will be there in between the elements. ठीक है. Because by default जो हमारा end होता है in a print function that is new line. तो इसमें हमने mention कर दिया that is now end will happen according to whatever the syntax we have mentioned. So we have mentioned now end as a space, couple of spaces there. So this was just we have actually implemented in last couple of lectures. So we move to the next slide. Yes, this is the next slide is. So next important concept is about the slicing. Yes, Shriya, just explain this one. What is there? Yes, sir. So slicing means to extract a certain part of the list. For example, here we are given the list containing each and every element of the word India. पहले हमने print करवाना list from 0 to 3. That is the index value 3 will not be included. So the element at the index value 0, 1 and 2 will be printed. That is I, N and D. Then print 3, 2. They have not defined the end value. So it will print from 3 to the rest of the value in the list. That is I and A. Then they haven't given any value in the list function. So it will print the whole list. Yes.
एक एक ये जो लिस्ट 1 और ये जो फर्स्ट प्रिंट है और सेकंड प्रिंट है, इस तरह का एक क्वेश्चन जो है वो फाइनल एग्जाम में भी था आपके, ठीक है। ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन थे उसमें 2 लिस्ट को हमने कंकैटिनेट करना था, और जिसमें लिस्ट की रेंज ऐसे दी हुई थी 0 to 3 एंड देन 3 to लाइक दिस। तो इससे जो मिलता क्वेश्चन है दैट वाज देयर इन दी योर फाइनल एग्जाम आल्सो। सर सेकंड वाला नहीं समझ लगा। हाँ जी, सेकंड पार्ट जो 3:1 वाला था वो 1 सर नहीं है आईयू ये 1 नहीं है, ये 3 देन इसके लिए रेशो वर्ड ना यूज करो। दिस इज ए कॉलन इन पाइथन ना, इट्स नॉट ए रेशो, वी आर नॉट स्टडीइंग मैथमेटिक्स। 3:1 नहीं है, 3 देन ब्लैंक है इधर, ठीक है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट डली हुई है, स्क्वायर ब्रैकेट मींस कि वी हैव नॉट मेंशनड द एंड पार्ट। सो एंड पार्ट इज जितनी भी लिस्ट होगी दैट विल बिकम द एंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइस। तो इस स्लाइस में 3 ऑनवर्ड्स लास्ट जितनी एलिमेंट्स है दे विल बी कवर्ड इन दिस। तो थर्ड एलिमेंट कौन सा है? थर्ड एलिमेंट है हमारे पास, दिस 0, दिस इज 1, दिस इज 2। तो थर्ड है 3 से शुरू हो गए टिल द एंड ऑफ द लिस्ट। क्लियर। और लास्ट में तो ये है कि ये रेंज ही नहीं मेंशन की हुई, तो स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू मेंशन नहीं है, तो वी आर टॉकिंग ऑफ द होल ऑफ द लिस्ट। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। तो एक थोड़ा ध्यान रखा करो, यूज दी पाइथन लैंग्वेज नाउ, डोंट यूज दी अदर लैंग्वेज। और सर वो कॉलम की वजह से कोई बात नहीं। थोड़ी कंफ्यूजन हो हाँ, गई थी 3 रेशियो वाली। हाँ, व्यू में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी आई होगी, so that's not an issue. Next is updating and manipulating the list. So how we can basically work on the different operations on the list, that is how we update the elements of the list. So we can update single multiple elements of a list by using the slice on the left hand sides of the assignment operator. तो इसका मीनिंग क्या है हमारे पास कि जैसे ये लिस्ट है हमारे पास, तो फर्स्ट वी हैव क्रिएटेड ए लिस्ट, देन इस जो सेकंड स्टेटमेंट है इसे हम क्या कर रहे हैं कि जो सेकंड इंडेक्स वैल्यू पे एलिमेंट्स है उसको प्रिंट करवा रहे हैं। अब नेक्स्ट में हमने क्या किया है, दैट इज लिस्ट 2 3। सो अब हमने क्या किया है, दैट इज लिस्ट एलिमेंट 2 को हमने क्या किया है, अपडेट किया हुआ है। इससे अभी हमने सिंगल एलिमेंट को अपडेट किया हुआ है, बट वी कैन अपडेट दी मल्टीपल एलिमेंट्स आल्सो ऑफ ए लिस्ट। और नेक्स्ट पे फिर से हमने ये लिस्ट एलिमेंट 2 को प्रिंट किया एंड विल जस्ट हैव ए इसको रन करके देखते हैं, दैट विल गिव यू ए बेटर क्लैरिटी रादर देन सेइंग द थिंग्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, ये जो ओरिजिनल लिस्ट है हमारे पास, फिर हमने क्या किया, जो इंडेक्स वैल्यू 2 पे जो वैल्यू पड़ी है उसको प्रिंट किया है। ठीक है, तो पहले यहां तक प्रोग्राम को रन करते हैं एंड देन वी विल आस्क द क्वेरी टू। ठीक है जी। सो इंडेक्स वैल्यू 2 पे कौन सी वैल्यू है, दिस इज द 0th इंडेक्स वैल्यू, दिस इज द फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू, दिस इज द सेकंड इंडेक्स वैल्यू। तो यस, अब इसकी आउटपुट कौन बताएगा, द थर्ड लाइन कोड आउटपुट। यस जसलीन, स्टार्टिंग फ्रॉम जसलीन। सर लिस्ट में लिखा है कि 2:3 है, तो 2 सेकंड एंड थर्ड इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी 2001 और 2002 से। लेकिन ये 3 की वैल्यू भी चेंज होगी, आपने ये 3 को भी इंक्लूड कर लिया, बट नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव सेड दैट दी जो हमारा अपर बाउंड है दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट। सॉरी तो सिर्फ ये लिस्ट 2 का एलिमेंट ही जो है वो अपडेट होगा। ठीक है, सो यू कैन सी हियर दी आउटपुट में अगर हमने लिस्ट को ले, clear, so now we can see at the index value 2, clear, so कौन सी वैल्यू आ गई हमारे पास, 2001 आ गई हमारे पास। ठीक है,
एंड 3 पे हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई है, दैट इज नाउ वी हैव एट 3 वी हैव सर सेकंड इंडेक्स पे ही ये दोनों वैल्यूज आई हैं, वो फिर Yes. न्यू लिस्ट बन गई। yes yes yes, तो मल्टीपल वैल्यूज आर देयर, मल्टीपल वैल्यूज हैव गॉन हियर, ठीक है। लिस्ट 2 पे एक ही एलिमेंट अपडेट हो रहा है, बट वो एक एलिमेंट में अगर हम यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स एक और एलिमेंट डाल देते हैं, लेट्स से 2003, so the multiple elements have been entered at a one location, एक लोकेशन पे मल्टीपल एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे, so this is how this is happening. So now we move to the next printing. Here is clear. So new value is entered at the index value 2, तो इसमें क्या हो रहा है, इंडेक्स वैल्यू जो नहीं है, फिर से लिस्ट को प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, तो जो ऑलरेडी अब हमारे पास जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसके अंदर ये अपडेशन हो रही है, एंड सिमिलरली लास्ट के ऊपर क्या होगा, लिस्ट 3 एलिमेंट्स में लिस्ट 3 एलिमेंट को हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, सो 2002 कौन सी लोकेशन पे है, लिस्ट 3 पे, सो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो 3 पे कौन सी वैल्यू अब हमारे पास 200 and 2. So this is how we are going to basically work with the updation and manipulation with the list. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज टू वर्क विद द सिंपल ऑपरेशन इज दैट इज हाउ टू ऐड ए एलिमेंट इनटू ए लिस्ट। इसमें हमारे पास दो फंक्शन है, एंड वी हैव नो द सेम क्वेश्चन वाज देयर इन द फाइनल एग्जाम आल्सो, दैट वाज देयर द डिफरेंस बिटवीन द अपेंड एंड द एक्सटेंड फंक्शन। ठीक है, तो अपेंड फंक्शन और एक्सटेंड का कौन डिफरेंस बताएगा? यस, एनीवन हु इज रेडी टू आंसर? Yes, yes, Bhavya. Sir, in append we add a single element and in extend we can add multiple elements. Append में अगर हम multiple elements अगर हम लिखते हैं as argument हम देते हैं तो वो as a single element ही आएगा, और extend में हम वो अलग अलग आ जाएंगे, मतलब वो append में single bracket में ही आएगा as one element. तो सिंपल सी बात है, अगर हमने सिंगल एलिमेंट को अपेंड करना है तो अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे, अगर हमने मल्टीपल एलिमेंट्स डालने हैं देन वी विल मेक यूज ऑफ द दिस एक्सटेंड फंक्शन। सो वी हैव ऑलरेडी द एग्जांपल ऑफ दिस वन इज रेडी। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास फर्स्ट, ये जो कोड जो है हमारे पास एक लिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स है 1 and 2 with the index value 0 and 1। तो उसके बाद हमने क्या किया, अपेंड 3, तो ये थर्ड ये एलिमेंट हमने डाला है इसके अंदर, तो जो भी लिस्ट होगी उसके लास्ट पे ये थर्ड एलिमेंट ऐड हो जाएगा, एंड देन वी हैव प्रिंटेड द लिस्ट। सो आई विल जस्ट, ये ऑलरेडी इसकी नीचे आउटपुट दी हुई है। ठीक है, वी कैन रन दिस वन आल्सो। ठीक है, तो ये है हमारे पास लिस्ट before the append function, and this is the list after the append function evidence. तो append की functionality should be clear that it adds a element at the last of the list. अब दूसरा है हमारे पास extend function. So in the second example you can see this extend function. तो extend function का काम होता है that we can enter the multiple values. So this is the advantage over the append that at one go we can enter multiple elements. ठीक है, कि अगर हमने 10 एलिमेंट ऐड करने हैं तो एक एक करके करने की जगह वी कैन मेक यूज ऑफ दिस एक्सटेंड फंक्शन। और जो नेक्स्ट इसकी फंक्शनैलिटी है, ठीक है, बिफोर वी सी द कोड हियर वी जस्ट लुक एट द, अब ये है इसकी एप्लीकेशन। application is there in the code. ठीक है, और आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर हमारे पास ये सिनारियो था कि दैट वी हैव टू एंटर द एलिमेंट्स इनटू द लिस्ट, और ऐसे डिक्शनरी में भी था।
So first we look at the scenario how we enter the elements into the list. So पहले number one step होता है हमारे पास, that is this is the blank list we have. ठीक है, so this is the blank list that we start with. तो A हमारे पास अब list बन गई है blank. ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बात है, जब भी हम करली ब्रैकेट्स का यूज कर रहे हैं तो इट मींस वी आर टॉकिंग ऑफ डिक्शनरी, एंड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग ऑफ दिस स्क्वायर ब्रैकेट इट मींस वी आर टॉकिंग ऑफ लिस्ट, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द सिंपल पेरेंथेसिस, तो सिंपल पेरेंथेसिस किसको रिप्रेजेंट करती हैं? टपल। टपल. सो सिंपल जो पेरेंथेसिस हैं एंड दे बेसिकली रिप्रेजेंट द टपल. तो सबसे पहला स्टेप क्लियर हो गया. नेक्स्ट इज हाउ मेनी एलिमेंट्स वी वांट टू एंटर इनटू द लिस्ट. सो दिस इज गिवन बाय दिस वैल्यू n, एंड देन वी हैव स्टार्टेड ए लूप स्टार्टिंग फ्रॉम i विद द वैल्यू 1 अप टू n+1. तो n+1 का मीनिंग क्या है? बेसिकली n एलिमेंट्स वी वांट टू एंटर बिकॉज यू नो n+1 विल बी एक्सक्लूडेड. और बाद में हमने क्या किया, जो एलिमेंट हमने इनपुट किया उसको वेरिएबल, किस वेरिएबल को असाइन कर दिया? b को, और b को हमने अपेंड कर दिया अपनी लिस्ट के अंदर. क्लियर? हाउ वी हैव एक्सेस्ड द लिस्ट, दैट इज a इज द नेम ऑफ द लिस्ट, डॉट अपेंड इज माय मेथड, इज माय फंक्शन, and b is the element that will be inserted into the list. So it's very very important that you understand the code. ठीक है, और ये जो फार से पहले ये जो स्पेस छोड़ी हुई है बी और ए में, ये कौन बताएगा? यस नवदीप, ये बता सकते हैं ये स्पेस क्यों छोड़ी हुई है हमने, ये इस लेफ्ट साइड से जो स्पेस छोड़ी हुई है? नो सर. So yes, yes, Mannat will tell this. तो इंडेंटेशन, क्योंकि हमने Indentation. फॉर का यूज किया है. ठीक हो गया, ठीक हो गया. मन्नत ये भी बताओ कि ये ए डॉट सॉर्ट लिखा हुआ है, इसमें हमने स्पेस का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि एक फंक्शन है सॉर्ट. तो ये देखो, मैं स्पेस तो डाल ही सकता हूँ ऐसे ऐसे. अगर मैं स्पेस डाल दूंगा तो क्या मीनिंग सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? शायद चेंज हो जाए, क्योंकि हमने बंद करनी होती है शायद, So पता नहीं. Mannat Sharma is not in very good form, that I understood. Yes, yes, Shriya will explain the Mannat, ध्यान से सुनना इसको. सॉरी सर, वो मेरा इंटरनेट इशू था, प्लीज रिपीट द हाँ. क्वेश्चन. एक्चुअली क्या सिनारियो था, पहले ऐसा था प्रोग्राम में हमारे पास लाइक दिस. तो मैंने ये इससे पूछा है, मन्नत हैज राइटली आंसर्ड द फर्स्ट पार्ट इज, क्योंकि ये जो स्पेस छोड़ी हुई है ये है इंडेंटेशन के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है. माय सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक भव्या हैज अंडरस्टूड द क्वेश्चन, सो आई विल स्विच ओवर द क्वेश्चन आंसर टू भव्या. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे. यस भव्या. सर इंडेंटेशन वहाँ यूज होती है, यहाँ पे जैसे फॉर हमने यूज किया फॉर लूप, तो उसके नीचे जहाँ पे भी स्पेस हमने छोड़ी है वो फॉर फंक्शन का पार्ट है. पर यहाँ पे a डॉट सॉर्ट हमने फॉर, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फॉर फंक्शन, तो वो क्योंकि a लिस्ट पे ही हमने फंक्शन अप्लाई किया है, तो वहाँ पे इंडेंटेशन की जरूरत नहीं है, उसका फिर मतलब चेंज हो जाएगा. वेरी गुड. तो सिंपल सा है, जो भी भव्या ने आंसर किया, वेरी गुड आंसर, शी हैज एक्सप्लेन्ड इन वेरी गुड वर्ड्स. तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि ये जो a डॉट सॉर्ट है, इसको मैंने अगर ऐसे ही लिख दूंगा तो ये फार का पार्ट बन जाएगा, हर बार ये सॉर्ट करेगा लिस्ट को. तो लिस्ट को तो मैंने एक ही बार सॉर्ट करना है, सो आई विल नॉट कीप इट इनसाइड दी फॉर लूप. तो सिंपल सी बात है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा. तो अब ये जो है ये फॉर का पार्ट नहीं है. क्लियर? सो गुड आंसर बाय भव्या. तो इससे क्या हो जाएगा, एक ए सॉर्ट हो जाएगी, और लास्ट n-1 का क्या मीनिंग है? ठीक है, बिकॉज लिस्ट की जो इंडेक्सिंग है वो 0 से लेके n-1 तक ही होती है. तो n-1 बेसिकली रिप्रेजेंट्स द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. तो सिंपली ऑलरेडी वी हैव डन दिस प्रोग्राम नंबर ऑफ टाइम्स, वी विल जस्ट रन वंस. तो लेट्स से हम इसके अंदर 7 एलिमेंट्स डाल देते हैं. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद दिस फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट,
क्लियर? सो दिस विल फैच दी नो लिस्ट को सॉर्ट करके जो लार्जेस्ट एलिमेंट है इट विल प्रिंट दैट। तो इस प्रोग्राम में जो हमने सीखा है बेसिकली हाउ टू बेसिकली पॉपुलेट ए लिस्ट, ये है इसके अंदर मेजर लर्निंग। बाकी सॉर्टिंग तो एक आपको पता ही है, एक सिंपल सॉर्ट मेथड को यूज करके हमने लिस्ट को सॉर्ट कर लिया, और जो लास्ट एलिमेंट होगा दैट विल बी दी बिगेस्ट एलिमेंट। और इस प्रोग्राम को बिगेस्ट एलिमेंट के लिए हम और कौन सा मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं? विच अदर मैकेनिज्म वी कैन यूज? हाँ जी, हाँ जी, या श्रिया? सर वी कैन यूज मैक्स फंक्शन, मैक्स ब्रैकेट के अंदर लिस्ट। मैक्स फंक्शन यूज कर सकते हैं, दैट्स फाइन। अदर देन दैट सी में कोई पता सर है? सी जावा में? हाँ जी। यस सर। हम्म। सर हम फॉर लूप लगाकर हर एक एलिमेंट को उसके नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करके फिर एंड में जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसको मैक्स में स्टोर करके उसको प्रिंट करवा सकते हैं। यस यस यस। तो बेसिकली वो उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं लीनियर सर्च। क्लियर? तो जो भी आपने एक्सप्लेनेशन की है उसका मीनिंग होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड दी लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च क्या होता है? डाटा, अगर जब हम सर ये इट डाटा विल सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक्स को पढ़ते हैं डाटा स्ट्रक्चर में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होती हैं, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक्स। ठीक है? तो लीनियर सर्च के अंदर क्या होता है बेसिकली दैट ईच एलिमेंट इज बेसिकली, हर एक एलिमेंट को हम कंपेयर करते हैं, वो सर्चिंग के लिए बेसिकली यूज करते हैं, बट इसको हम सर्चिंग के लिए यूज कर सकते हैं, प्लस साथ साथ में हम जैसे श्रिया ने बताया कि एक एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट को मैक्स एलिमेंट लेके बाकी सभी एलिमेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर उससे बड़ा एलिमेंट हमें कहीं पे भी सर्च होता है सो वी बेसिकली उसको स्वैप कर देते हैं, फिर नेक्स्ट एलिमेंट के साथ हम उसको कंपेयर करते रहते हैं। तो सर्चिंग टेक्निक से भी हम मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिकली हाउ टू ऐड टू लिस्ट। तो ये है हमारे पास लिस्ट 1 जो है दैट इज 1 टू लिस्ट 2 के अंदर है 3 4। तो ये दो लिस्ट को हमने ऐड किया है। ये बेसिकली टेक्निकली दिस इज ए कंकैटिनेशन फंक्शन, दिस इज नॉट ए बेसिकली वी यूज, इसके लिए हम ऐड वर्ड यूज करते हैं, बट ये दो लिस्ट को क्या करता है आपस में कंकैटिनेट करता है। नेक्स्ट इज हाउ टू डिलीट ए एलिमेंट फ्रॉम ए लिस्ट। तो एलिमेंट को कैसे डिलीट करना है? दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस del फंक्शन। del then is the list and then is the index value of the element that we want to delete. So we'll just go with this one. Yes. del के अलावा कोई और फंक्शन है जिससे हम एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं लिस्ट में? रिमूव फंक्शन सर। रिमूव फंक्शन, और एक और तीसरा फंक्शन भी है पॉप फंक्शन। So we will use here list dot pop, और लेट्स से मैं लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना चाहता हूँ, उसकी इंडेक्स वैल्यू है लेट्स से 2। So I will just run this one and you see here the third ये जो जिसकी वैल्यू 3 है, this element has been deleted. So ये दूसरा मेथड है। तीसरा है हमारे पास रिमूव मेथड। Clear? So these are the basic operations on the list are there. One is first method है हमारे पास length. So this is equally important to find the number of elements which are there in a list. Second function you can see here, that is the addition of two lists, and technically ये है concatenation, that is how we can add or combine two lists. Next है हमारे पास repetition. So for that we use the multiplication operation is used to repeat a list. ठीक है? अगर हमने लिस्ट को रिपीट करना है उसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मेंबरशिप। क्लियर?
So if we want to check that whether the number is present in the list or not, so for that we use the in 3 in this particular list. So this will give us the result in the form of true or false, whether the element is present in the list or not. So this is basically a membership. Clear? And the last is basically how to use the list in a iteration. तो ये जो 4 2 3 है, ये बेसिकली फॉर लूप में ये है हमारे पास, ये बन जाता है, दिस इज ए सीक्वेंस बेसिकली दैट वी हैव. तो सीक्वेंस को हम रेंज फंक्शन से भी जनरेट कर सकते हैं और सीक्वेंस को हम एज इट इज लिस्ट के साथ मेंशन भी कर सकते हैं. क्लियर? तो बिकॉज द लिस्ट इज ए ऑर्डर्ड, तो इसको एक हम रन करके देख लेते हैं. यूज द इंडेंटेशन एंड जितने भी एलिमेंट्स होंगे लिस्ट में, सो ऑल दोज एलिमेंट्स will become the values of x and they will. So we have generated the sequence using the range function also, and we can make use of a sequence. We can make a sequence with the help of a list also. So just all these points are not very difficult, but very important that we are again familiarized with that. एक मैंने आप लोगों को बार बार बोला था कि लिस्ट का जो यूज है इन +2 लिस्ट एंड दिस डिक्शनरी, सो दे आर वेरी वाइटल इन +2, दैट विल बी यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली इन द अपकमिंग डेज. ठीक है? सो दीज आर द फ्यू मोर फंक्शंस व्हिच आर देयर इन द लिस्ट. तो अपेंड फंक्शन, एक्सटेंड फंक्शन, वी कैन ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स इन द लिस्ट. इंसर्ट है, तो इंसर्ट का जो एडवांटेज है हमारे पास कि इंसर्ट को हम कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं. क्लियर? बाय मेंशनिंग द इंडेक्स वैल्यू हम लिस्ट के अंदर कहीं पे भी उसको इंसर्ट कर सकते हैं. सो इंसर्ट एन आइटम एट ए डिफाइंड इंडेक्स. तो अपेंड और एक्सटेंड से इंसर्ट फंक्शन बिकम्स a bit different because we can add a element at the required index value using the insert. और लिस्ट को रिमूव करने के लिए, दैट इज टू रिमूव ए एलिमेंट, वी कैन यूज द रिमूव फंक्शन आल्सो, del फंक्शन आल्सो, एंड देन पॉप मेथड आल्सो. क्लियर मेथड जो है हमारे पास, दैट इज टू डिलीट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट. इसका हम एक यूज करके देख लेते हैं अभी. एट ए पॉइंट हैज, जैसे हमारे पास लिस्ट है, so what was the basically exact syntaxes? Clear method, huh? Clear? So nothing is now present here like this, and जैसे del फंक्शन के साथ हम क्या करते थे, वी आर बेसिकली मेंशन द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द एलिमेंट. सो अगर हम इंडेक्स वैल्यू को मेंशन नहीं करते, सो व्हाट विल हैपन, यू जस्ट run this one and then try to print the list. So just no element is there. Clear?
So list all the elements can also be deleted using this del function also by just mentioning the name of the list. Clear? So class list is available. So my humble request is that you just again become familiar with all the functions which are there, and clear, just is to reverse the list. We have this reverse method, then length, max, minimum, and we want to find out that how to basically convert a tuple, string, set, dictionary into a list. So by mentioning the list and then we are mentioning the sequence, so it will be converted into the list. So these are the just few functions that you can make use of. Yes, Jasleen wants to say something. सर सॉर्टेड फंक्शन बता दो एक बार. एक सॉर्ट मेथड था हमारे पास, एक सॉर्टेड में था हमारे पास. क्लियर? तो सॉर्ट और सॉर्टेड में क्या है, सॉर्ट आइटम्स की लिस्ट इन दी असेंडिंग और डिसेंडिंग. ठीक है, so we will take a list. प्रिंट ही करा लेते हैं. प्रिंट एक सॉर्ट था हमारे पास. यस, इसका नाम हमें चेंज करना पड़ेगा. दूसरा था हमारे पास सॉर्टेड. ये सॉर्टेड में क्या था डिफरेंस? यस, So we have to assign this function to a variable. सो अच्छा बी, बट बी इज नॉट ए बेसिकली ये लिस्ट ना. लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज सॉर्टेड कैसे काम करता था? सॉर्टेड ऐसे काम करता था. सॉर्टेड के अंदर, सॉर्टेड मेथड के अंदर हमें ये एज ए पैरामीटर पास करना पड़ता था. तो ये हुआ, सो ये सॉर्ट तो हुआ ही नहीं है. पता है किसी को डिफरेंस, ये सॉर्टेड और सॉर्ट में क्या डिफरेंस? क्योंकि वो जो सॉर्ट फंक्शन है वो लिस्ट का एक एट्रीब्यूट है. क्लियर? दैट इज दी बेसिकली ए मेथड ऑफ दैट वन. और सॉर्टेड में क्या है? यस, श्रिया वांट्स टू से समथिंग ऑन दिस. So sort function do not create a new list after sorting the elements, but sorted function it creates a new list after sorting the elements. तो इसको असाइन करना पड़ेगा किसी और लिस्ट को. Yes, किसी वेरिएबल को असाइन करके उस वेरिएबल को प्रिंट करवाना है. क्लियर?
सो बेसिकली सॉर्टेड इज नॉट, एक तो ये है कि ये लिस्ट का एट्रीब्यूट नहीं है, क्लियर। सो दिस इज ए इंडिपेंडेंट फंक्शन जिसमें हम लिस्ट को एज ए पैरामीटर पास कर रहे हैं, एंड सेकेंडली इट क्रिएट्स ए न्यू लिस्ट। सो व्हेन ए न्यू लिस्ट इज क्रिएटेड, सो देन यू नो दी, अदरवाइज अगर हम लिस्ट को प्रिंट करते हैं तो ये ओल्ड लिस्ट तो एज इट इज ही रहेगी। सो इन a sorted list has to be assigned to some other variable and that variable has been printed। तो sorted list से नई लिस्ट बनेगी इससे। so that is all कि जो sort method है उससे original list को हम sort कर रहे हैं, और sorted method से क्या हो रहा है, that is a new list is created and that you have to assign to a different variable and get it। so that is what we have covered. These are the methods you can practice a bit, clear। And then there are few programs are there, clear। जैसे ये प्रोग्राम है हमारे पास to find out the biggest elements that we have already done, ठीक है। दूसरे मेथड में इसको क्या किया हुआ है, that is जो हमने दूसरा मैकेनिज्म यूज किया हुआ है, that is to find the कि फर्स्ट एलिमेंट को हमने मैक्स लेके चले हैं और फिर हमने रेस्ट ऑफ द लिस्ट के साथ उसको कंपेयर किया हुआ है, क्लियर। इस मेथड को उसने यूजर डिफाइंड फंक्शन से किया हुआ है, सो दैट यू कैन डू विद द यूजर डिफाइंड फंक्शन, या उसके आप बिना भी कर सकते हो। so this is a one more program is there, that is to find the average, ठीक है, average of the elements of the list, that is this is the program for linear search। तो linear search में है बेसिकली, ये लार्जेस्ट एलिमेंट के लिए नहीं है, ये है बेसिकली लीनियर सर्च का जो बेसिक आइडिया है, दैट इज अगर हम लिस्ट में से किसी भी एलिमेंट को चेक करना चाहते हैं, दैट इज द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट, दैट इज द लीनियर सर्चेस। लीनियर सर्च को हम अपनी क्लास के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने लीनियर सर्च को अपनी क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करना है तो क्या मैकेनिज्म है उसका, क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उसके अंदर हम लीनियर सर्च का यूज कर रहे हैं, सो व्हाट इज द लीनियर सर्चेस, ठीक है। जैसे अगर हम किसी स्टूडेंट को सर्च कर रहे हैं, सो वन बाय वन वी कैन सर्च इट आउट, क्लियर, वेदर दैट स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास और नॉट। सो लीनियर सर्च, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इन रियल लाइफ ऑफ द लीनियर सर्च, क्लियर। यस भव्य, एनी अदर एग्जांपल ऑफ लीनियर सर्च इन रियल लाइफ, रियल लाइफ में से कोई एग्जांपल बताओ जहां पे हम लीनियर सर्च का यूज करते हैं। कहीं पे भी हम रियल लाइफ में सर्चिंग कर रहे हैं, जैसे हमारी शॉप है वहां पे हम एलिमेंट्स को सर्च कर रहे हैं, जहां पे भी अपनी बुक्स है, ठीक है, बुक्स में अगर हम कोई सर्चिंग कर रहे हैं पेज वाइज, तो पेज 1 पे हमने देखा, पेज 2 पे देखा, पेज 3 पे देखा। सो लाइक दिस वे वी कैन लुक एट द एग्जांपल्स व्हिच आर देयर इन द रियल लाइफ, ठीक है। तो रियल लाइफ में से हम उसको कंपेयर करके, एंड क्लियर, दैट इज द सिंपलेस्ट सर्च है, दैट इज द लीनियर सर्च। लीनियर सर्च के अलावा कोई और सर्चिंग टेक्निक है हमारे पास? बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च, वेरी गुड। तो बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, पहले सारे एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटे एलिमेंट से सबसे बड़े एलिमेंट्स में पहले सारे एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम लिस्ट को हाफ हाफ करके वी कीप ऑन सर्चिंग द एलिमेंट्स। so many techniques are there for searching, so many techniques are there for sorting the element. So that is the basic about the list we have covered. So in the next lecture we will probably go for the dictionary, and we will try to finish up whatever we have covered in critical. कोई आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन है? So before we close up, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन पूछा है जसलीन ने, दैट इज देयर सॉर्टेड एंड सॉर्ट में क्या डिफरेंस है, and well backed up by Shriya. So thank you very much for patiently listening to the class. Thanks beta. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks. Thank you.